Hello everyone, this is Prachi and you're watching efutureinsight.com हिंदी, जहां हम सीखेंगे इंग्लिश थ्रू हिंदी। अब हम देखेंगे 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज D14। लास्ट वीडियो में हमने प्रेपोजिशन के बारे में जाना था। इस वीडियो में भी हम प्रेपोजिशंस के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रेपोजिशंस इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज हम जो प्रेपोजिशंस देखने वाले हैं वो है फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। तो इन सारे प्रेपोजिशन का एक्चुअल यूज कैसे करना है और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे, ताकि आप लोगों को और अच्छे से ये समझ में आ जाए। आप देखेंगे कि प्रेपोजिशंस लगाने के पीछे कोई ना कोई नियम काम करता है। इसको ध्यान से हर एक सेंटेंस देखिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहला हमारा जो प्रेपोजिशन है वो है फ्रॉम। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। लड़का स्कूल से अनुपस्थित था। द बॉय वॉज absent फ्रॉम स्कूल। द बॉय वॉज absent फ्रॉम स्कूल। आपको धूम्रपान से बचना चाहिए। यू मस्ट abstain फ्रॉम स्मोकिंग। यू मस्ट abstain फ्रॉम स्मोकिंग। मेरे चाचा आसाम से आए हैं। My uncle has come from Assam. My uncle has come from Assam. वह मुझे वहां जाने से रोकता है। He prevents me from going there. He prevents me from going there. Now let's see use of by. मेरे पिताजी मेरे साथ थे। I was accompanied by my father. I was accompanied by my father. इस खबर से घबराइए नहीं। Please don't get disturbed by this news. Please don't get disturbed by this news. मेरी कहानी सुनकर उसका बड़ा मनोरंजन हुआ। He was highly amused by my story. He was highly amused by my story. यह पैकेट सोमवार तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। This packet should reach Mumbai by Monday. This packet should reach Mumbai by Monday. Now let's use of with. तुम दूसरों से व्यवहार करना नहीं जानते। You don't know how to deal with others. You don't know how to deal with others. हमें अंग्रेजी भाषा से परिचय होना चाहिए। We should be acquainted with the English language. We should be acquainted with the English language. वह चित्रकला की प्रतिभा से संपन्न था। He was gifted with a talent for painting. He was gifted with a talent for painting. मेरा बॉस मुझ पर मेहरबान था। My boss was pleased with me. My boss was pleased with me. Use of in. वह अपने काम में तल्लीन था। He was busy in his work. He was busy in his work. तुम्हें अपने व्यवहार में नम्र होना चाहिए। You must be polite in your behavior. You must be polite in your behavior. वह संगीत में दक्ष है। He is well versed in music. He is well versed in music. अब यहाँ हमने इनके एग्जाम्पल्स देखे हैं। नाउ लेट्स सी यूज ऑफ ऑफ। उसे सफलता का पूरा भरोसा था।
He was sure of success. He was sure of success. वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता था, या वह अपनी कमजोरी को पूरी तरह जानता है. He is fully aware of his weaknesses. He is fully aware of his weaknesses. उसे आम बहुत भाते हैं. He is fond of mangoes. He is fond of mangoes. उसे देखकर मुझे उसके भाई की याद आती है. He reminds me of his brother. He reminds me of his brother. तो यहाँ हमने of का यूज देखा है. Now let's see use of for. क्या वह परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है? Is she preparing for the test? Is she preparing for the test? मैं हमेशा उसका ख्याल रखता हूँ. I always care for him. I always care for him. उसने अपने दुर्व्यवहार के लिए मुझसे क्षमा मांगी. He apologized to me for his misbehavior. He apologized to me for his misbehavior. उसे पैसे का हिसाब देना होगा. He will have to account for the money. He will have to account for the money. यहाँ हमने for का यूज देखा है. Now let's see use of to. वह धूम्रपान का आदी हो गया है. He is addicted to smoking. He is addicted to smoking. उसने नियमों के विरुद्ध आचरण किया. He acted contrary to the rules. He acted contrary to the rules. कुछ लोग स्वास्थ्य की हानि करके पैसा कमाते हैं. Some people prefer wealth to health. Some people prefer wealth to health. उसने मामला उच्च अधिकारियों के सामने रख दिया. He referred the matter to the higher authorities. He referred the matter to the higher authorities. पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की. The police look into the matter. The police look into the matter. हमने अपनी पुस्तकें अपने बस्ते में डाली. We put our books into our bags. We put our books into our bags. वह कमरे में गया. He went into the room. He went into the room. Now let's see use of against. मैं तुम्हारे शत्रुओं के विरुद्ध तुम्हें सदा चेताता हूँ. I always warn you against your enemies. I always warn you against your enemies. डॉक्टर ने उसे बहुत अधिक काम करने के विरुद्ध चेतावनी दी. The doctor warned him against working too hard. The doctor warned him against working too hard. Now let's see use of on. उसकी आलोचना तथ्यों पर आधारित नहीं है. His criticism is not based on facts. His criticism is not based on facts. आप वहां जाने पर क्यों तुले हुए हो? Why are you bent on going there? Why are you bent on going there?
हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। We cannot rely on him. We cannot rely on him. Now let's see use of or. बर्फ सड़क पर फैली है। Snow is scattered over the road. पुल नदी के ऊपर है। The bridge is over the river. The bridge is over the river. Let's see use of about. माँ अपने लड़के के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित है। The mother is worried about her son's health. The mother is worried about her son's health. वह सीमा के बारे में पूछ रही थी। She was inquiring about Seema. She was inquiring about Seema. Now let's see some phrases prepositions. अब हम कुछ ऐसी phrases prepositions देखेंगे जिनका आम तौर पर इस्तेमाल होता है। वह कठिन परिश्रम के फलस्वरूप सफल हुआ। He succeed by dint of hard work. He succeed by dint of hard work. हमें अपने देश के लिए हर वस्तु का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। We should be prepared to sacrifice everything for the sake of our country. We should be prepared to sacrifice everything for the sake of our country. हमें अपने मित्रों की भलाई में रहना चाहिए। We should act in favor of our friends. We should act in favor of our friends. हमें जीने के लिए काम करना होगा। We must work in order to live. We must work in order to live. बहुत व्यस्त होने के बावजूद भी मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। My friend came to see me in spite of being very busy. My friend came to see me in spite of being very busy. यहाँ हमने बहुत सारे प्रपोजिशंस देखे हैं। आई होप आप लोगों के ध्यान में आ गए होंगे। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वो है क्रिया आदि शब्दों के साथ में कुछ खास प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। उनका अच्छी तरह से हमें यहाँ पे अभ्यास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब्सटेन, प्रिवेंट, रिकवर के साथ में फ्रॉम का यूज होता है। इसी प्रकार अकम्पनी, रिप्लेस, डील, प्लीज, सेटिस्फाई के साथ यूज का प्रयोग होता है। उसी के साथ प्रिपेयर, केयर, अपोलोजाइज के साथ में फॉर का यूज होता है। वैसे ही एडिक्ट, प्रीफर, रेफर के साथ टू का यूज होता है और बेस, रिलाई के साथ ऑन का प्रयोग यूज होता है। इनके बारे में हम लोगों ने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, तो आप लोग वो महसूस कर पा रहे होंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। एक और चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि प्रेपोजिशन के कुछ प्रयोग बहुत पक्के हो गए हैं, जिसे हम कहते हैं फ्रेज प्रेपोजिशंस, जो वैसे की वैसी ही यूज आती है। फॉर एग्जाम्पल बाय डिंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन द मिडेस्ट, ऑन द ईव ऑफ। इन सारे फ्रेज प्रपोजिशंस को हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल के तौर पे ऊपर देखा हुआ है। अच्छे से वीडियो समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। प्रपोजिशन ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपको पक्के से आना, बहुत अच्छे से आना बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही करियर गाइडेंस, कम्युनिकेशन स्किल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।